I'll start again. So oxidation is the effect of corrosion. Sorry, corrosion is the effect of oxidation. I'm really sorry. Okay, so corrosion has both these ways, both the sides. Like it is beneficial also, it is harmful also. So in the entire world, every year billions of property, get damaged, due to corrosion, which is the effect of oxidation. So what happens here is that the oxygen reacts with the hydrogen, it forms the water, the moisture, and moisture is harmful for some of the elements. Okay, and we know that like railway, like the in like if we take the example of our country only, the railway, it's most of the inventory, the iron, the rails, like the पटरी जो होती है वो जगह पे ही पड़ी रहती है, and they get rusted every year. Like आपने घरों में पुराने अगर if you have seen the almiras, जो पुरानी अलमारी होती है वो सब, so they get rusted. For your understanding, I have put a picture here. You can see how the rusting happens here. How does it look like? A brownish reddish brown color यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ठीक है? Reddish brown color दिखाई देगा आपको यहाँ पे. So this is the color after the rusting. Okay, so what is the corrosion here? So in terms of iron, in case of iron we call it rusting. Okay, we call it rusting, but for all other elements it is just called as corrosion. कॉपर में क्या होता है? कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है. सिल्वर में क्या होता है? सिल्वर में ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है. ओके, आफ्टर द कोरोजन. सो व्हाट इज द प्रोसेस हियर? सो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस जो क्या करता है कि मेटल्स को ट्रांसफॉर्म करता है अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस में, मतलब कि उनको कोरोड करता है. ओके, और किसके प्रेजेंस में? नॉट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, also in the presence of moisture, that is what water. So if I ask you, does corrosion happens in the presence of oxygen only, then you will say no, that will be false. It happens in the presence of oxygen plus water both. It happens in the presence of oxygen plus water both. Moisture होना ही चाहिए वहां पर, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, पहले मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी, पहले मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, तो वाटर बन चुका होता है, then that reacts with the metal and metal oxide is formed. Okay, here now in this case, as I said कि rusting यहाँ पर कि corrosion को iron के केस में rusting बोलते हैं, and both water and air are necessary for rusting. Both water and air are necessary for rusting. Okay, so one example is already given in the textbook where you take the boiled water में different objects are yes, इट मतलब कोरोजन के जो रस्टिंग होती है उसके इफेक्ट्स फिर क्या होते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ में वीकनेस आती है, उसकी डेंसिटी भी थोड़ा सा अफेक्ट करता है. सो देयर आर वेज टू. सो वन एग्जांपल व्हिच इज गिवन एज द रस्टिंग इन बुक दैट ऑयल लेयर जो बॉइल्ड वाटर में होता है उसमें नेल का क्या इफेक्ट पड़ता है. सॉल्ट सोल्यूशन में अगर हमने नेल को एक लोहे की कील को रखा तो क्या होता है, एयर में हमने लोहे की कील को रखा तो क्या इफेक्ट करता है. ओके, एंड सिमिलरली एयर एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, वहां पे ऐसे एग्जांपल देके बताया कि रस्टिंग किस में अफेक्ट करता है. So that is I will leave up to you guys only, that you can just see that example. The important part we are going to do here is that to understand the reaction of it. Okay, in case of iron, in case of copper, so the corrosion of copper, a green layer is formed. Okay, green color layer is formed over the metal. Okay, green color layer is formed ओवर द मेटल. ओके, यहाँ पर ग्रीन, उसमें क्या होता है, आयरन के केस में रेडिश ब्राउन होता है. सिमिलरली सिल्वर के केस में, इन केस ऑफ द सिल्वर दैट इज Ag, कौन सी कलर फॉर्म होती है, ब्लैक कलर हो जाता है, इट टर्न्स इनटू ब्लैक. सिल्वर टर्न्स इनटू ब्लैक, सिल्वर टर्न्स इनटू ब्लैक कलर. सिमिलरली कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, ठीक है. नाउ दिस इज समथिंग, ये बाद में आती है, इसके पहले हम रिएक्शन समझते हैं. ओके, हाउ रस्टिंग रिएक्शन. ओके, कोरोजन रिएक्शन इन, मैं बहुत सिंपल वे पे बताने वाला हूँ, ठीक है. इन आयरन, ऑफ आयरन, रिएक्शन ऑफ आयरन. तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले जो फेरस होता है वो ऑक्सीडाइज होता है. तो ऐसे समझो कि फेरस जैसे एक सरफेस लिया, ठीक है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आयरन रॉड है, यहाँ पर आयरन रॉड लिया हमने. तो क्या होता है यहाँ पर कि हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है एटमॉस्फेयर में, एंड दे रिएक्ट एंड दे फॉर्म द वाटर आल्सो, द मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर व्हाट हैपेंस हियर इज,
कि आयरन और एक ऊपर से इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, फिर ऐसे लेयर आ जाती है, ठीक है। तो वहां होता क्या है यहाँ पर, आयरन सिंस इज अ मेटल, इट्स एटॉमिक नंबर इज 26। हाँ, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दैट यू विल लर्न इन 11th ग्रेड। आई फिगर्ड इट आउट, आई थोड़ा सर्च भी किया मैंने, तो आई फिगर्ड इट आउट। द कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर द आयरन हियर टू टेल अबाउट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फॉर ऑल फ्रॉम ऑल द मेटल्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखता है, ना कि 2 8 8 विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी राइट। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वहां पर जो हमने शेल पढ़ा है, हमारे सिलेबस में सिर्फ शेल पढ़ने का था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शेल पढ़ते हैं हम, राइट। बट इसके केस में सब सेल भी का भी कॉन्सेप्ट ऐड है, सेल फिर उनका भी सब सेल जो होता है, तो उनके केस में बताया कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज करेक्ट, ओके, दिस वे इज करेक्ट। तो आयरन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 8 14 2 होता है। तो आयरन का जो वैलेंसी है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वैलेंसी इज आल्सो 2, दैट सो इट गेट्स 2 प्लस। तो आयरन का क्या होता है कि आयरन व्हेन इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका रिएक्शन कैसे दिखाई देता है? इट्स रिएक्शन लुक्स लाइक दिस, 4Fe, okay. One second. हाँ, सो आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, दैट इज 3O2, वी कैन बैलेंस इट लेटर आल्सो, इट्स दैट इज कंप्लीटली फाइन। एंड इट फॉर्म्स द फेरिक ऑक्साइड, इट फॉर्म्स द फेरस ऑक्साइड यहाँ पे, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे बनाता है, फेरस ऑक्साइड O3 ये बनाता है फेरस ऑक्साइड। फिर ये क्या करता है, अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, अब इट विल रिएक्ट विद द वाटर, एंड दिस ferrous oxide Fe2O3 is reacting with the water H2O, okay, and it forms Fe2O3 dot, यहाँ पर H2O का यहाँ पर फैक्टर लिखा हुआ है, फैक्टर ऑफ द वाटर, एंड दिस इज रस्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर आयरन रस्टिंग, रस्ट को फॉर्मूला बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट, दिस इज रस्टिंग हियर। सो होता क्या है यहाँ पर, मैं बैलेंसिंग के साथ भी बताता हूँ कैसे होता है यहाँ पर, एग्जैक्टली होता है, हाउ डज दिस टेक्स प्लेस, ओके। नाउ ओके, तो यहाँ पर होता क्या है कि पहले आयरन का मैंने बता दिया कि आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 14 2, so it has the valency of 2, it has the valency of 2, valence electron भी 2 है, valency भी, because it will donate, because since it is 4 less than 4। so आयरन क्या करेगा, जब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, समझना, आयरन विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन हियर, Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। नाउ इट्स वैलेंसी इज 2 हियर, एटॉमिक ऑक्सीजन का वैलेंसी इज आल्सो 2 हियर। तो क्या होगा यहाँ पर, कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का वैलेंसी कैसे फॉर्म होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो इट फॉर्म्स लाइक Fe2O2, ओके, बेसिकली ये बनना चाहिए। बट यहाँ पर अभी बैलेंसिंग नहीं, सिंस ऑक्सीजन इज द डायटोमिक, यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझते, जैसे हमने बेसिक समझा था स्टार्टिंग में ही, कैसे करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे एंड द राइट हैंड साइड, ठीक है, समझिए, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए Fe2O3 आता है, 2Fe2O3 आता है, बैलेंस्ड ये वाला रहता है, इन द राइट हैंड साइड इट कम्स लाइक दिस। तो बैलेंस्ड Fe राइट हैंड साइड में 4 हो जाता है और ऑक्सीजन 6 होता है, इसको बैलेंस यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विद 3 हियर, just as I will take the different color here। So यहाँ पर लिखेंगे 3, so this is balanced and we need iron as 4, 4 iron चाहिए हमें, यहाँ पर ये आ जाएगा 4। so this is how it takes place and Fe2O3 is formed, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये हो गया हमारा Fe2O3 फॉर्म हो गया। now this Fe2O3 further reacts with water,
मॉइस्चर कंटेंट आता है उसमें, एंड इट फॉर्म्स, ये फैक्टर होता है Fe2, बस याद कर लेना और कुछ नहीं, अभी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, Fe2O3 ही रहेगा, बट ये मल्टीप्लाई हो जाता है सिंपल सा वाटर के फॉर्म में, फैक्टर इसका वाटर का कुछ फ्रैक्शन, कैसे ऐसे समझो कि वाटर का कुछ फ्रैक्शन रस्ट बनाता है आयरन के साथ, राइट, वाटर का some fraction of the water makes the rust here, and that is why it can be simply just written as it is just written as in the factor of multiplication, multiply करके लिख दिया गया है, nothing else. Okay, so this is called rust, this is nothing but the rust. बुक में एनोड और कैथोड करके बताया है, वो सिंपल है, बुक में क्या किया है कि पहले आयरन क्या है, आयरन सॉलिड है, आयरन सॉलिड है, इसमें 2 प्लस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, दो इसको बेसिकली क्या करेगा, Fe2O3 जो इसको इसका एक्वस सॉल्यूशन दिखाया है कि जो थोड़ा सा एनोड रीजन में Fe2O प्लस दिखाया है, क्योंकि आयंस की बात करेगा ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या करेंगे, लूज करेगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ये ऑक्सीजन के पास चले आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो कंपाउंड बनेगा, वैलेंसी शेयर करेगा आयरन, तभी तो कंपाउंड बनेगा. सो बुक में ऐसा दिखा है, बट दैट इज कंप्लीटली ओके, यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, दिस विल आल्सो बी कंप्लीटली करेक्ट, because at the end you get it this only. Okay, Fe2O3 into H2O you get. Okay, water मिलता है ये भी, और ये solid होता है, this is solid, plus हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है aqueous. Okay, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है यहाँ पर. So this is all, or I can, if you want, I can write these two reactions together. पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के पहले वाटर बना दे, then we can react directly with the iron. वो भी करेक्ट होगा, वो भी कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगा. ओके गाइस, सो आई होप दिस इज क्लियर. रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन जो है इसका क्लियर है. रेंसिडिटी ऑलरेडी उस दिन बताया था कि हमने रेंसिडिटी में क्या है कि जो ऑयल वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है उसमें, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है रेंसिडिटी में, ऑक्सीडेशन, एंड दे गेट देयर टेस्ट एंड स्मेल गेट चेंज. ओके, उनका टेस्ट और स्मेल चेंज होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही थी, व्हाट ऑक्सीजन की उसमें रिएक्शन हो रही होती है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा होता है, तो उनका टेस्ट चेंज होता है. तो टेस्ट चेंज होने की वजह से क्या होता है, वो देयर टेस्ट चेंजेस एंड दे गेट स्पॉइल. तो उसको बचाने के लिए व्हाट वी डू हियर इज कि उनको ऑक्सीडेशन से बचाना है, मतलब उनको ऐसे जार में रख दी जहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो, ठीक है, ये कर सकते हैं. कुछ एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते हैं, उनको उनमें स्प्रे करा दो तो ना हो. जैसे चिप्स होता है, चिप्स वगैरह क्या होता है, ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, दे विल गेट सॉफ्ट, चिप्स का टेस्ट खराब हो जाता है, सॉफ्ट रहते हैं, तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन वाले पैकेट्स में रखते हैं, उनको पैक्ड पैकेट्स में रखते हैं जिसमें उनमें कोई भी खराबी ना आए. So let me take the responses here, whether we all clear. Okay, so this is clear, right? And we can go ahead and take the doubt now questions. One example of it, इसका एक और पार्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है. एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे एक्सरसाइज का, you will see the you will find the this reaction entirely. Subham is saying to repeat again. Which part, Subham, you want me to repeat? I can do that. Quickly let me know, and I'll take the doubts now. Yes, guys, in the entire chapter, if you have any doubt in the entire chapter, if you have any doubt, we can take this like next 45 minutes, 45 minutes up till 1. Exactly 1 will end the class, so we have enough time. You can ask any doubt here, okay? Ankit, okay, same. Okay, great. I will take the again example. You got this Fe2O3 फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ठीक है, प्लस H2O रिएक्शन हुआ है, तो इट्स सिंपली जस्ट लाइक नथिंग बट फेरस ऑक्साइड ही है वो, ये फेरस ऑक्साइड है मॉइस्चर के प्रेजेंस में. दैट्स व्हाई वी डोंट राइट इट प्लस H2O here we don't write H2O. Okay, how do we write? We write it like this, Fe2O3 इसकी रिएक्शन होती है वाटर के प्रेजेंस में. वी डोंट राइट कि वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है इसकी मॉइस्चर के साथ, तो इट फॉर्म्स Fe2O3 dot H2O multiplication with the H2O, that is this is nothing but the rust, we call it rust बोलते हैं इसको,
वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन को रस्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ओनली। यस गाइस, एनी अदर डाउट from the entire chapter? I'm going to take the doubts from the entire chapter. If you have any doubt from the chapter, like if I revise here, guys, you can go ahead and ask. Okay, Subham is asking potassium permanganate, that is KMnO4. Okay, तो उसमें क्या बताना है? पोटेशियम परमैंगनेट इज नथिंग बट द KMnO4. अभी से वर्ड याद मत करो, वर्ड अभी जरूरत नहीं याद करने की, जितने अभी हमारे काम के उतने ही याद करो. दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट. क्या बता दें इसमें, बताओ. कुछ चीजें अभी हमारे सिलेबस में अभी हमने पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है कि रिएक्शन कैसे बनानी है. हमने बेसिक पढ़ा है, बस हो गया. Akash is asking balancing equation a little. Can you and Akash is asking double displacement reaction. Yes, that is fine. We can repeat that as well. So let's go ahead. Okay, let me take the example of double displacement reaction here. One of any of the double displacement reaction, and then I'll take the example of balancing equation. ठीक है? चलिए एक सेकंड दे दीजिएगा. Let me just find one example for balancing the equation. Okay, let's take this example only. चलिए समझते हैं. तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम एल्कोहल ग्रुप कहलाता है. OH इज नथिंग बट द एल्कोहल ग्रुप. सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर. इसकी रिएक्शन हो रही सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, तो दे आर गोइंग टू रिएक्ट and they form Na2SO4. They form Na2SO4. At the end of the classroom, I will share the syllabus. So just stay with me only here. Okay. At the end, I will share the syllabus. क्या आएगा, कितना आएगा. Okay. तो stay with me only. Yes. तो देखो बैलेंस कैसे करना है मैं बता चुका हूँ. बहुत सिंपल एग्जांपल है. पहले एलिमेंट लिख लो आप एक साइड, फिर लिखो नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, जो एटॉमिसिटी लिखना है. एटॉमिसिटी समझ लीजिए आप, कितने एटम्स हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी. एटॉमिसिटी. ठीक है, आप समझना, देखना कितना इजी है. पहला कौन सा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम है, ये रहा सोडियम हो गया. देन वी हैव OH, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप. देन वी हैव सल्फर, S, एंड दैट्स इट. ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, इतना ही हमारे पास. नाउ sodium in the left hand side is just one atom here, so one will write. right hand side में कितना है, 2 है, तो we'll write 2. we'll write it as 2. okay, देखो समझना, we'll write it as 2. now oxygen is 1 this side and 4 this side, so it is total of 5. लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर एक हो गया और यहाँ पर 4 है, so it is a total of 5. right now राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 हो गए और यहाँ पर 1 है. सो यस, इट इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड. ऑक्सीजन बैलेंस्ड है. हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो दैट इज 3 इन टोटल. एंड हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर हियर, 2 इन टोटल. देयर आर 2 हाइड्रोजन हियर. ओके, सल्फर कितने यहाँ पर, ओनली 1 सल्फर, एंड हियर आल्सो इट इज जस्ट 1 ओनली. राइट, इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? अभी इतना क्लियर हुआ ये कैसे टेबल बनाना है, हाउ यू कैन मेक दिस टेबल. guys let me know if you are confident that you can make this table while balancing the chemical equation. right, I would love to see the responses like more promptly. थोड़ा सा जब बोले तो तभी तुरंत आएंगे. ओके, सो यहाँ पर क्या करना है, अभी बैलेंस कैसे करना है देखो. तो हम क्या करेंगे, हमारा सोडियम बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 एटम्स है, तो व्हाट विल डू, यू विल मल्टीप्लाई बाय 2. हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे.
तो लेकिन आपको पता है 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंस इट इज अ कंपाउंड, सिंस इट्स अ कंपाउंड, तो डायरेक्टली 2Na नहीं लिख सकते, वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2 इंटायरली, वी विल राइट इट लाइक दिस। तो क्या बन जाएगा ये 2NaOH दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस। तो 2 यहाँ पे 2 लिखे होने का मतलब क्या होता है, ये पूरे इसके साथ है, राइट, इट विल लुक लाइक दिस। देन ये बैलेंस हो गया। अभी 2 का मल्टीप्लाई करने में, सोडियम से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ऑक्सीजन के भी 2 बढ़ गए, ऑक्सीजन इज आल्सो हैज बीन इंक्रीज्ड, ऑक्सीजन के भी 2 बढ़ गए ना, ऑक्सीजन के 2 एटम्स बढ़ गए, हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स बढ़ गए, राइट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 बढ़ गए, यहाँ पर +2 हो गया, और हाइड्रोजन में भी +2 हो गया, तो अब ये बन गया 7 और ये बन गया 5, राइट, 7 and 5, ये दो दो बढ़ गए, ठीक है। फॉर नाउ वी आर जस्ट डूइंग द बैलेंसिंग रिएक्शन, आ जाए, फॉर नाउ वी आर जस्ट डूइंग द बैलेंसिंग। मैं डबल डिस्प्लेसमेंट इसके बाद तुरंत आ जाऊंगा, डबल डिस्प्लेसमेंट अभी सिर्फ मैं बैलेंसिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब नंबर्स बढ़ गए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के भी और सोडियम के, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब टोटल ऑफ, सॉरी, दिस वाज ऑफ 5 नॉट 5, दिस वाज ऑफ 5, हाँ, तो अभी कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, सॉरी 7 नहीं 6 हुआ है, ये 7 नहीं 6 हो गया अभी ये, ठीक है, दिस हैज बिकम 6, क्योंकि ये 2 हो गए ना, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर 4 तो पहले से ही थे, तो ये हो गया टोटल 6 हो गया, और हाइड्रोजन 5 ना होके 4 हुआ है, सॉरी माय बैड, इट हैज बिकम 4, क्योंकि यहाँ पर पहले से 2 थे और 2 यहाँ पे आ जाएंगे अब, ठीक है, तो इट हैज बिकम 4। नाउ यहाँ पर एक बढ़ाना पड़ेगा हमें इसको बराबर करने के लिए, तो व्हाट वी वुड डू हियर इज, सो विल राइट सिंपली एज H2SO4, इसको यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे हम, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम नहीं कर रहे कुछ, राइट हैंड साइड में हमने बढ़ा दिया जितना का होना था, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कितना चेंज आएंगे, ठीक है, लेट्स सी द व्हाट चेंजेस कम इन लेफ्ट हैंड साइड। Na2SO4 आप सीधे सीधे वैसे लिख लीजिए पहले, Na2SO4 आप डायरेक्टली वैसे लिख सकते हैं, Na2SO4 ये लिखा हमने, प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन बढ़ गया था और एक हाइड्रोजन बढ़ गया था एक्स्ट्रा, एक एक एक्स्ट्रा बढ़ गए थे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं अब हम, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए टोटल, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर अगर हम 2 और ऐड कर दें, इफ वी जस्ट ऐड 2 हाइड्रोजन हियर देन इट विल बी परफेक्टली करेक्ट एज 4, राइट, 4 पूरा पूरा हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, let's let me just take the different color here, 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ यहाँ पर, क्या अभी देखो अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे सोडियम तो पहले से ही बराबर थे हमारे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सल्फर हमारा पहले से ही बराबर था 1 1 सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन अब यहाँ पर 4 हो गए हैं, यहाँ पर 4 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 4, और प्लस यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, दीज आर द टू ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है, राइट, तो 6 टोटल ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर हो गए, और यहाँ से कितने ऑक्सीजन निकल के आ रहे हैं, 4, ये भी 6 परफेक्टली बैलेंस्ड हो गया, राइट, परफेक्टली बैलेंस्ड हो गया। अब देखो हाइड्रोजन, लेट्स काउंट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आर 2 हियर, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और इस साइड कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो दिस आल्सो इज 2 ओनली हियर, राइट, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अभी देखो ये 4 था, सॉरी दिस वाज 4 ओनली नॉट 5, यहाँ पर 2 हो गया, ऐसे कर दिया हमने। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर ये 2 थे ना, ये देखो ये 4 हो गए हाइड्रोजन, ये पूरे पूरे 4 हाइड्रोजन बराबर है, दोनों साइड बैलेंस हो गया, सो दिस इज हाउ वी विल बैलेंस द इक्वेशन, जस्ट बाय मेकिंग द टेबल। अगर इफ वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट मेकिंग द टेबल देन इट विल बी रियली easy for everyone, okay, I think you have got the idea of balancing the equation. Can you give me quickly in a response in the chat box whether you are clear, or we can take more examples here? Yes, quickly let me know. Ajay is confident about it. That's great. Ankit, it is not necessary to draw the table. It is just easier to do it like that. Okay, it is not necessary. You don't need to make the table if you can do it. But kya hota na? It becomes easier. It becomes easier to do it like that. Yes, is that clear for everyone else? Then we are going to double displacement reaction after done this. Quickly let me know. Okay, then we'll move to double displacement reaction now then. Okay.
Okay, let's quickly go ahead. And now we come to the double displacement. Some of you asked for the double displacement reaction. Double displacement reaction. Let's take the example of it. Okay, double displacement reaction. Here we have the example of, okay, let's take some examples. Give me a second. I'll just get a quick reaction for that. And I think here we go. Yes, we have the double displacement reaction examples. Okay, so silver nitrate AgNO3. Okay, silver nitrate AgNO3. This is silver nitrate. I will write its name. This is silver nitrate. Okay, plus potassium iodide Ki. Okay, potassium iodide is reacting, and this is a double displacement reaction here, because how it is, how would it take place? Let's understand this. Okay, we can understand this one now. सिल्वर नाइट्रेट ओवरऑल बताएंगे, ठीक है? थोड़ा सा बहुत आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डीप पे नहीं जाना है, बस ओवरऑल बताते हैं. पोटेशियम एंड सिल्वर नाइट्रेट हियर, समझिए. जो सिल्वर है, सिल्वर, ओके, एंड just a second. Okay, silver has atomic number of 47. Silver has atomic number of 47. Okay, and it's a, और अच्छा, इसमें हमें वैलेंसी नहीं बताने की जरूरत है, हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव समझने की जरूरत है. तो सिल्वर इज पॉजिटिव, इट्स अ मेटल. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्सचर इज नेगेटिव. पोटेशियम इज पॉजिटिव मेटल है, एंड आयोडीन इज नेगेटिव. ओके, नेगेटिव आयंस है. समझ, ये क्लियर है ना सभी को? नेगेटिव आयंस कैसे बताना है? आर वी क्लियर विद दिस, और शुड आई एक्सप्लेन यू दिस? मेटल्स जो होते हैं पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं. आई थिंक वी हैव लर्न दिस अ लॉट. पॉजिटिव आयंस, नॉन मेटल्स, they form negative ions. And in double displacement reaction, exchange of ions, exchange of ions, metal to metal, remember, metal to metal, and non-metal to non-metal. Metal to metal and non-metal to non-metal. This is what it. This is what happens here. Okay, in this reaction. So what will happen here? हाँ, चलेगा. तो यहाँ पर क्या होगा? पोटेशियम विल रिप्लेस सिल्वर हियर. पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, और नेगेटिव बेसिकली एक ही को चलेगा, एक ही या तो पॉजिटिव का रिप्लेसमेंट हो जाए यहाँ पर, और नेगेटिव आयंस का रिप्लेसमेंट हो जाए, कैटायंस का रिप्लेसमेंट हो जाए, या फिर एनोड्स का एनायंस का रिप्लेसमेंट हो जाए. यहाँ पर क्या बन जाएगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा. यहाँ पर ये बन जाएगा. दिस इज हाउ इट विल टेक प्लेस, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये माइनस है. बताइए अगर समझ में आ गया तो. इतना ही है, ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें अलग से. वी कैन हैव मोर एग्जांपल्स. क्विकली लेट मी नो. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर. The silver nitrate again is reacting with the sodium chloride, that is salt. सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन का है इनका, सोडियम क्लोराइड, एंड दिस इज सिल्वर नाइट्रेट. ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगेन Ag इज प्लस, सिल्वर इज प्लस, दिस इज Na सोडियम, सॉरी दिस इज NaO3. दैट्स व्हाई आई थॉट कि Na कैसे आ सकता है यहाँ पे.
मेटल मेटल हो जाता अदरवाइज. दिस इज माइनस, सोडियम इज पॉजिटिव, क्लोरीन इज माइनस. व्हाट विल हैपन? क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द कंपाउंड हियर. क्या न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पर? Which new compound will be formed? Double displacement reaction है. Yes guys, anyone? It's a double displacement reaction. What new compound will you get here? Anyone? Ajay is saying AgCl plus NaNO3. Okay, perfect. So first will be formed as NaNO3. This Na will replace Ag, silver, NaNO3 plus silver chloride बन जाएगा. This is how it will take place. देखिए डाउट है कुछ भी है तो बताइए जरा. If you have not understood anything, जल्दी से. Akash, since you had the doubt, I hope that is completely clear for you. Now, next doubt from anyone? Yes. Yes. Ajay, you can see it's a precipitate here. ये precipitate रहता है, नीचे ही रहता है. Yes, you can say that. Yes, guys, let's move to the next doubt. People who have more doubts here, yes, quickly let me know. You can type your doubt in the chat box. Yes, Ajay, precipitate रहता तो we show the down, but जब ये double displacement reaction होती तो even if you don't show, that is fine, because we are just showing the how the exchange of ion takes place. But when we write a chemical reaction, then we definitely show the arrow down in reaction. Yes. Yes, guys. Any other doubt? I'm waiting for the other doubts. The further doubts we have here. Ajay, I'm seeing the response from Ajay and Akash. Doubts, guys. We can go ahead and discuss. Endo and exothermic reaction. Okay, Sanya, we will go ahead and understand endo and exothermic reaction. Okay, let's understand that as well. So what happens in endothermic? What happens in exothermic reaction? Okay, so I'll just quickly write it down. Endo and exothermic reaction. Endothermic and exothermic. I'll write it completely. Okay, so let's understand this now. Okay, so endothermic, this means inside, in, okay, enter हो गया यहाँ पर. Okay. Yes, Subham, we'll do this after that. और thermic means heat here. Internal in है ये, ठीक है. Internal in है मतलब कि अंदर जाएगा, मतलब इसको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, मतलब इसको प्रोवाइड कराएंगे. एक्सोथर्म मींस एक्सटर्नल आउट और हीट. ओके, हीट का बाहर आना. अब देखो क्या होता है इन एवरी रिएक्शन, ईदर सम काइंड ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड. ओके, थोड़ा बहुत हीट प्रोवाइड करना पड़ता है. लेकिन एंडो क्या होती है जिसमें हम हीट ज्यादा सप्लाई कर दें और जो प्रोडक्ट है बाहर हीट कम आए. ओके, हमने ज्यादा उसको गर्म कर दिया है, जैसे कि सिंपली फॉर एग्जांपल फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर
ओके, सो बॉइलिंग ऑफ वाटर, सिंपल जो वाटर बॉइलिंग है, इसमें क्या होता है, वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ हीट हियर। ओके, हम बहुत सारी हीट प्रोवाइड करा रहे होते हैं, वी ऑलरेडी गिव द हीट, मतलब टेम्परेचर हम जो हीट बर्नर से दे रहे होते हैं ऑलरेडी बहुत सारी देते हैं, एंड सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा हीट निकल के आनी चाहिए। बट वहीं पर फॉर इन द अदर केस, इन द अदर केस हमने क्या किया, सोडियम को ले लो, अब क्रैकर ले लो, फॉर एग्जाम्पल क्रैकर्स ले लो, क्रैकर में आप थोड़ा सा हीट देते हो, जो फायर मैच स्टिक से थोड़ा सा जलाते हो उसे, राइट, थोड़ा सा हीट देते हैं, थोड़ा सा हीट देते हैं, हीट देते हैं, बट बाहर कितनी सारी हीट निकल के आती है, राइट, बाहर बहुत ज्यादा हीट निकल के आती है, एक्सटर्नल आउट होता है, द हीट टेक्स प्लेस, द लाइट यू सी, राइट। मैग्नीशियम को हमने, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो अगेन वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ कि कितना सारा हीट बाहर आता है। लास्ट ईयर हमने लैब में भी किया था, वी हैव वॉच द वीडियो आल्सो, दैट हाउ dazzling white flame and heat comes out, okay, so magnesium oxide is formed there, magnesium oxide बनता है। we saw the example of calcium carbonate, CuCO3, इसको जैसे ही हमने मतलब कि सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड को देखा हमने, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या किया था, चूने को हमने वाटर में डाला, वाटर में पोर किया, एंड वी सॉ कि वहां से हीट बाहर आना स्टार्ट हुआ, हीट स्टार्टेड कमिंग आउट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड। ये भी लाइम ही है, दिस इज लाइम, नथिंग बट द लाइम ओनली, चूना है, ठीक है। तो अनदर हीट बाहर आया, एंड वी राइट हीट, जब भी हीट बाहर आता है वी राइट हीट, ओके, वी राइट हीट, एंड दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। लेकिन जिसमें हम हीट ज्यादा दे रहे होते हैं, जिसमें हम हीट ज्यादा दे रहे होते हैं, लेकिन हीट जो प्रोड्यूस होती है वो कम होती है, बहुत कम होती है, देन वी कॉल दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन, वी कॉल दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन। मोस्टली ऑल द फिजिकल चेंजेस जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती हैं, बिकॉज वी प्रोवाइड हीट मोर देन द लाइक सप्लाई इज मोर देन द प्रोडक्ट में जो बाहर आता है, हीट प्रोड्यूस जो होती है दैट इज लेस। Yes, Pradum. Heat is given called exothermic, burning of crackers, burning of candle. Yes. हाँ, कैंडल का एग्जांपल हो गया। कैंडल में क्या होता है, वी प्रोवाइड थोड़ा सा हीट एंड देन इट कीप्स बर्निंग, राइट, इट गिव्स अ लॉट ऑफ it gives a lot of amount of, you know, calcium carbonate is the molecular for formula for limestone. Yes, basically calcium carbonate is taken for the marble, okay, calcium carbonate is not for the, exactly not for the limestone, it is taken for the marbles, इट इज टेकन फॉर द मार्बल्स, जो मार्बल होते हैं, ठीक है, जो भी वॉट एवर दिस स्पेलिंग इज, तो मार्बल्स के लिए लिया जाता है। लाइम के लिए कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, लाइम के लिए, चूने के लिए, ये थोड़ा सा ज्यादा क्रिस्टलाइन होता हो जाता है मार्बल, सब कार्बन से ही है बट ये ज्यादा क्रिस्टलाइन होता है। तो दिस इज आर कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर इज, so we have revised oxidation reduction, हमने देख लिया एक बार अभी, ठीक है, थोड़ा सा कोरोजन में, कोरोजन देख लिया, we just saw the double displacement reaction, endothermic and exothermic reaction. Any other doubt, guys? Yes, quickly let me know if you have any other doubt here. I can start explaining about the real syllabus, the syllabus you are going to get in the exam. Rate of reaction, for the rate of reaction I had not shared the video, I will definitely share the video, and the notes were not there, I will share the video so you can make the notes for that, okay. It's the theory part, you can do that, I will share the video after the class, okay. I'll definitely upload the video on Google Drive, Google Drive से आप देख सकते हो, चलेगा। कैटलिस्ट बता चुके हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है, कि सब्सटेंस जो रिएक्शन में प्रेजेंट होता है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या कम करता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओके। ओके, कैन वी, आई थिंक if you, I think you are clear with the doubts for this chapter. In the next class we can take one chapter and you know, start taking their doubts in the next class.
ओके, नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर के डाउट करेंगे। एंड आई कैन टेल यू द सिलेबस नाउ। मैंने अभी तक बताया नहीं था, तो आई जस्ट क्विकली टेल यू द सिलेबस हियर नाउ।